Hello everyone, this is Pratibha Pandit from St. Andrews Institute of Technology and Management, Farooq Nagar, Gurugram. I am again here for delivering a lecture on Yield Line Theory, Unit 7. This is my lecture number 7 about this particular topic. So today this lecture is about Yield Line Theory. As I made my previous lecture, in that lecture I almost introduction part I have completed. So I will go further with this lecture. So I will show you some theory notes as I already discussed the introduction part of yield line theory. Okay, I discuss about what is yield line theory, what are yield line or crack lines, what are the properties of yield line, and method of analysis. We studied there are two methods of analysis, virtual work method and equilibrium method. Okay. Okay. So if I just completed till this slide. Okay. So this figure I show you that this is a slab which is fixed at both the ends. Okay, and this is the horizontal reinforcement. आप ट्रांसवर्स reinforcement में यहाँ पे देखेंगे कि एक yield line form है. This is the positive yield line. As I told you about the positive and negative yield lines. पॉजिटिव yield लाइन कहाँ फॉर्म होती है, जहाँ पे पॉजिटिव बेंडिंग मोमेंट होता है, और नेगेटिव yield लाइन कहाँ फॉर्म होती है, जहाँ पे नेगेटिव मोमेंट होता है. तो यहाँ पे पॉजिटिव मोमेंट का मतलब है कि ऊपर से स्लैब पे जो लोड लग रहा है उसकी वजह से, उस कोलैप्स लोड की वजह से वहां पे जो बार्स हैं वो यील्ड हो गए हैं और वहां पे एक लाइन फॉर्म हो गई है. ओके, सो व्हाट इज द फॉर्मूला ऑफ दिस पर्टिकुलर moment? We will use this as per IS 456/2000. What is the formula? 0.87 F by AST D under root 1 minus F by AST FCK BD. Okay, so this is formula we use for this condition when the yield line is positive. Second, when yield line makes an angle theta with the reinforcement. अगर yield line आपकी थीटा एंगल फॉर्म कर रही है reinforcement से, तो हमें जो फॉर्मूला मोमेंट के लिए यूज करना है वो हमें ये करना है, MUX sin स्क्वायर थीटा प्लस MUY cos स्क्वायर थीटा. मतलब जो आपका मोमेंट है, जो ऊपर से लोड की वजह से जो मोमेंट है, ओके, इसका x डायरेक्शन में और y डायरेक्शन में हम कंपोनेंट का यूज कर रहे हैं विथ दिस इंक्लिनेशन एंगल थीटा if the L is the length of this yield line. Okay, so this is the formula of MU at this particular condition when yield line is inclined. Okay, now the third condition is isotropic reinforcement slab. Okay, isotropic reinforcement slab is that type of slab in which area of steel is provided in both the directions. आप दोनों डायरेक्शन में एरिया ऑफ स्टील को प्रोवाइड करते हैं. तो आप जब दोनों डायरेक्शन में एरिया ऑफ स्टील को प्रोवाइड करते हैं तो वहां पे भी एज्यूम करके चलते हैं कि दोनों पे जो मोमेंट है वो इक्वल है. तो उसके लिए भी आप सेम फॉर्मूला यूज करेंगे, दैट इज MU. MU मतलब जो आपका अल्टीमेट लोड लग रहा है उसकी वजह से जो मोमेंट है वो क्या हो जाएगा, MU cos square theta plus sin square theta is if yield line is forming theta angle with the horizontal. Then fourth condition है orthogonally reinforced slab. What is orthogonally reinforced slab? Is that slab in which area of steel provided is not equal to mutually perpendicular direction. एरिया ऑफ स्टील म्यूचुअल परपेंडिकुलर डायरेक्शन के इक्वल नहीं होता है इस पर्टिकुलर केस में. तो हम इसमें क्या करते हैं कि मोमेंट जब आपका एरिया ऑफ स्टील म्यूचुअल परपेंडिकुलर डायरेक्शन में इक्वल नहीं है इस टाइप की स्लैब्स में, तो वहां पे जो मोमेंट होगा, लोड भी उसे प्रॉपर्ली
सेम मैग्नीट्यूड का डिस्ट्रीब्यूट नहीं होगा, मोमेंट का जो अमाउंट होगा वो भी डिफरेंट होगा, मोमेंट डिफरेंट है तो वहां पे जो x और y डायरेक्शन में जो मोमेंट है वो भी इक्वल नहीं है. सो हियर वी एज्यूम mu y इज इक्वल्स टू mu mu x. ठीक है. The ultimate yield moment capacity can be obtained with the help of this formula. Mu is equals to mu x sin square theta plus mu cos square theta. यहाँ पे एक mu coefficient आपका ऐड हो जाता है मोमेंट में जो आपका डिफरेंस होता है. ठीक है. Now we come on analysis part. Analysis of one-way slab. Now the next topic you may write on your notebook, that is analysis of one-way slab. Okay. So हमें वन वे स्लैब का एनालिसिस दो मेथड से यहाँ पे स्टडी करना है. फिक्स एंडेड वन वे स्लैब एंड सिंपली सपोर्टेड वन वे स्लैब. ओके. फिक्स एंडेड वन वे स्लैब एंड सिंपली सपोर्ट वन वे स्लैब. आप ये देखिए, कंसीडर अ वन वे स्लैब यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड लोड. हमने एक वन वे स्लैब एज्यूम की है यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड लोड की. एज द लोड इंक्रीजेस द सेक्शन, यहाँ पे सेक्शन लिखा हुआ है, द सेक्शन विद मैक्सिमम मोमेंट विल यील्ड फर्स्ट. किसी भी स्लैब में जिसमें यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड लोड लग रहा है, अगर उस पर आप लोड को बढ़ाते हैं तो जो मोमेंट होता है वो जैसे जैसे लोड बढ़ता जाता है तो आपका मोमेंट भी, मोमेंट की वजह से, मोमेंट एक तरीके से आप ये समझ लीजिए कि लोड लग रहा है तो वहां पे मोमेंट जनरेट हुआ, मोमेंट का अमाउंट बढ़ता हुआ उस कंडीशन पे मोमेंट बढ़ जाता है उस पर्टिकुलर पॉइंट पे. एंड अ प्लास्टिक हिंज और इन लाइन इज फॉर्म एट दैट सेक्शन अलाउइंग विद फ्री रोटेशन. आप ऐसे समझिए कि कोई एक स्लैब है, फॉर एग्जांपल okay, I will show you the figure. A slab which is having uniformly distributed load. उस यूनिफॉर्मली लोड कंटिन्यूअसली बढ़ रहा है तो सबसे पहले क्या होता है, उस पॉइंट पे मोमेंट जो होता है वो मैक्सिमम होता है. उसके बाद उस स्लैब में जो रेनफोर्समेंट है वो यील्ड होना, उनका शेप चेंज होना स्टार्ट होता है. ठीक है. इसको स्टडी हम प्लास्टिक थ्योरी से एनालाइज करते हैं. मतलब आप मोमेंट हो रहा है उस पॉइंट पे, मतलब रोटेशन हो रहा है, तो आप इसको प्लास्टिक थ्योरी से एनालाइज करते हैं. फिर क्या होता है, वहां पे मोमेंट इतना ज्यादा होता है कि वहां पे क्रैक डेवलप हो जाता है, यील्ड लाइन फॉर्म हो जाती है. ठीक है. और रोटेशन होने के साथ, तो वेदर दैट लाइन इज पॉजिटिव और नेगेटिव दैट इज डिपेंड्स अपॉन द अपकमिंग लोड बट द यील्ड लाइन विल फॉर्म. ठीक है. तो हम इसका एनालिसिस के लिए हमने एक डेरिवेशन करना है. when the number of required plastic is to form a mechanism. ठीक है. let us analyze one way slab for following two cases. Fixed ended one way slab. This is the figure for fixed ended one way slab. हमने पहला वाला मेथड ले लिया है. ओके. पहले वाले में फिक्स एंडेड वन वे स्लैब, जब भी एक साइड यहाँ से फिक्स हो एक साइड यहाँ से फिक्स हो तो ये वन वे स्लैब होती है. आपने यहाँ पे डैश 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 देख रहे हैं, यहाँ डैश डैश देख रहे हैं, यहाँ पे भी अगर डैश होता है यहाँ पे भी होता है तो ये टू वे स्लैब होती है जो चारों तरफ से फिक्स होती है, लेकिन ये एक तरफ से फिक्स है. ओके. तो इसके लिए हमें एनालिसिस करना है. दिस इज फिक्स्ड एट एंडेड वन वे स्लैब. फिक्स्ड एंडेड वन वे स्लैब, वन वे कह रही हूँ, टू वे नहीं बोल रही हूँ. ओके. सो अब आप इसमें बस ये देखिए, अभी तो ये फिक्स है, यहाँ पे लोड लग रहा है, तो एक लोड लग रहा है सपोज स्लैब की यहाँ पे, तो कुछ लोड इस पार्ट पे लग रहा होगा, कुछ लोड यहाँ लग रहा होगा. इसकी टोटल लेंथ आपकी L है, तो मेरे से क्या हो जाएगा L/2. दिस इज L/2 अगेन. ओके. और W अगर हम लेट W इज द कोलैप्स लोड, एज्यूम कर लिया है W इज द कोलैप्स लोड, दिस W इज द कोलैप्स लोड. तो हम इसमें ये देखते हैं, सपोज कि यील्ड लाइन आपकी सेंटर पे फॉर्म हो रही है. अब सेंटर पे अपकमिंग लोड की वजह से हो रही है, दैट इज व्हाई दिस इज पॉजिटिव यील्ड लाइन.
और यहाँ पे जो मोमेंट है वो फिक्स एंड मोमेंट है, नेगेटिव मोमेंट है, तो यहाँ पे जो लाइन फॉर्म होगी वो नेगेटिव लाइन फॉर्म होगी। ठीक है, तो आप इसमें 3 यील्ड लाइन देख रहे होंगे, 1 2 एंड 3। ठीक है, जी तो वो स्लैब के इतने पार्ट का सेंटर ऑफ ग्रेविटी जी है, स्लैब की दिस पार्ट का जो सेंटर ऑफ ग्रेविटी दैट इज जी। ओके, इस फिगर को समझ लीजिए पहले। इसका प्लास्टिक हिंज एनालिसिस के लिए हमने प्लास्टिक हिंज डायग्राम फॉर्म किया है। कैसे, ये पार्ट फिक्स है, इसको प्लास्टिक हिंज कंसीडर कर लिया, ये फिक्स है प्लास्टिक हिंज। ठीक है, इसके बाद यहाँ पे रोटेशन हो रहा है, रोटेशन तो होगा क्योंकि मोमेंट है, इनलाइन फॉर्म दैट इज सपोज थीटा, एंड डिफ्लेक्शन एट दिस पॉइंट इज डेल्टा बाई टू। सेंटर पे 2 डेल्टा हमने ले लिया, जो इनलाइन फॉर्म रही उस पे जो रोटेशन है आपका 2 थीटा, यहाँ पे जो डिफ्लेक्शन है दैट इज डेल्टा। सिमिलरली यहाँ पे थीटा एंड डेल्टा बाई टू। ओके, तो हम यहाँ से अगर 2 थीटा की वैल्यू लिखते हैं, यहाँ से आप सॉरी थीटा की वैल्यू लिखते हैं, तो दिस इज डेल्टा बाई 2, थीटा इज इक्वल टू डेल्टा बाई 2 डेल्टा, आप ऐसे देखिए 2 डेल्टा बाई 2 बाई एल। ओके, let deflection at mid span is delta and left and right segment of slab rotates by an amount of delta opposite direction. In case of fixed support, negative yield lines are developed, जो मैंने बताया वो लिखा हुआ है यहाँ पे, negative yield line form है at supports, let ultimate moment of resistance at supports provided by negative moment is m dash u. m dash u आपका negative moment है जो supports पर है, and अल्टीमेट मोमेंट ऑफ रेजिस्टेंस एट सेंटर इज mu, सेंटर पे जो ले रहे हैं वो पॉजिटिव mu ले रहे हैं। ठीक है, ये हमने लेट कर लिया कि साइड पे mu डैश है और सेंटर पे mu है। प्रोवाइडेड बाय मिड स्पैन पॉजिटिव रिइंफोर्समेंट कंसीडरिंग अ स्ट्रिप ऑफ यूनिट विड्थ ऑफ स्लैब। यूनिट विड्थ की स्लैब जो है, यूनिट विड्थ की स्लैब को हमने यहाँ पे कंसीडर कर दिया। तो हम वर्चुअल वर्क मेथड से अगर इसको सॉल्व करते हैं, फर्स्ट इज वर्चुअल वर्क मेथड, तो आप इसमें देखिए डेरिवेशन या जिस तरीके से हम इसका फॉर्मूला निकालते हैं। ओके, यहाँ पे जो ये मैंने लिखा हुआ है आप ये देखिए कि थीटा इज इक्वल टू डेल्टा अपॉन एल बाई टू। तो यहाँ से थीटा की वैल्यू क्या आ गई आपकी, 2 डेल्टा बाई एल। एल जो है वो एक पूरी लेंथ है स्लैब की, और डेल्टा क्या है, सेंटर पे जो डिफ्लेक्शन, और थीटा यहाँ पे जो रोटेशन है। थीटा इज इक्वल टू डेल्टा अपॉन एल बाई टू। तो यहाँ से थीटा की वैल्यू आ गई 2 डेल्टा बाई एल। अब वर्चुअल वर्क मेथड से हम इसको कैसे करते हैं ये देख लेते हैं एक बार। वर्चुअल वर्क मेथड का जो प्रिंसिपल था वो ये था कि एक्सटर्नल वर्क डन बाय अल्टीमेट लोड अंडरगोस डिफ्लेक्शन इज इक्विवेलेंट टू इंटरनल वर्क डन बाय यील्ड मोमेंट। ठीक है, इस प्रिंसिपल पे ये बेस्ड है। तो हमने क्या निकाला सबसे पहले, एक्सटर्नल वर्क डन बाय अल्टीमेट लोड। अल्टीमेट लोड क्या है, डब्ल्यू टू अंडरगो डिफ्लेक्शन डेल्टा। तो आप देख लीजिए यहाँ पे आपका जो अल्टीमेट लोड है दैट इज डब्ल्यू यू इंटू एल बाई टू। ओके, यहाँ पे जो डिफ्लेक्शन है इस लोड, क्योंकि ये डब्ल्यू यू कोलैप्स लोड है, यूडीएल है, तो हमने लेंथ का मल्टीप्लाई किया, अंडरगोस डिफ्लेक्शन डेल्टा बाई टू, प्लस स्लैब के इस पोर्शन के लिए डब्ल्यू यू इंटू एल बाई टू, ये तो आपका यूडीएल है। ठीक है, इंटू डिफ्लेक्शन, इस साइड का डिफ्लेक्शन डेल्टा बाई टू हमने एज्यूम किया था। आप यहाँ पे देखिए, यहाँ पे जो डिफ्लेक्शन है टोटल आपका क्या है, ये डेल्टा, यहाँ पे डेल्टा बाई टू, यहाँ पे डेल्टा बाई टू। तो आपने दोनों का जो डिफ्लेक्शन है, दोनों का जो वर्क डन है वो लिख लिया है। तो इसको कैलकुलेट किया तो कितना आ गया, डब्ल्यू यू एल इंटू डेल्टा बाई टू। ठीक है, इंटरनल वर्क डन बाई यील्ड मोमेंट। अब यील्ड मोमेंट जो हमने कंसीडर किए सेंटर पे mu और साइड में दोनों में mu डैश जो नेगेटिव मोमेंट है, तो उनकी वजह से जो वर्क डन है वो आप निकाल लीजिए। तो mu डैश इंटू थीटा, जो रोटेशन हो रहा है साइड में, तो वर्क डन यही होगा यहाँ के लिए, mu डैश इंटू थीटा, सेम प्लस mu डैश इंटू थीटा,
प्लस mu इंटू 2 थीटा सेंटर पे, mu इंटू यहाँ पे 2 थीटा. ओके, so then we will equate these two equations and put value of theta here. So by solving this, internal work done हमने यहाँ पे थीटा की वैल्यू इसमें पुट कर दी और y प्रिंसिपल और वर्चुअल वर्क मेथड हमने इन दोनों को इक्वेट कर दिया. तो यहाँ से WU मतलब कोलैप्स लोड का फॉर्मूला आपका ये निकल के आ गया. यहाँ तक आपको इसको याद रखना है. 8 mu डैश प्लस mu by L स्क्वायर. अगर सिमेट्री से देखते हैं हम तो जो नेगेटिव मोमेंट है अगर हम उसको पॉजिटिव मोमेंट की इक्विवेलेंट रख देते हैं तो mu डैश इक्वल्स टू 2mu हम पुट कर देंगे इसमें. तो यहाँ से जो हमारा कोलैप्स लोड का फॉर्मूला निकल के आएगा दैट इज WU इज इक्वल्स टू 24 mu by L स्क्वायर. ये आपको याद रखना है कि वर्चुअल वर्क मेथड से वन वे फिक्स स्लैब के लिए जो कोलैप्स लोड होता है वो होता है 24 mu by L स्क्वायर. ठीक है. एंड फॉर सिंपली सपोर्टेड वन वे स्लैब, इन अ सिंपली सपोर्टेड वन वे स्लैब द एंड मोमेंट, सिंपली सपोर्टेड के लिए जो एंड मोमेंट होगा वो जीरो होगा. फिक्स के लिए तो नेगेटिव है लेकिन सिंपली सपोर्ट्स पे तो जीरो होता है. वहां पे आप सपोर्टिंग मोमेंट mu डैश जो हम फिक्स मोमेंट एक अमाउंट ले रहे थे उसको जीरो रख देंगे. तो यहाँ से जो कोलैप्स लोड का फॉर्मूला इसी इक्वेशन में यहाँ जीरो रख देंगे तो यहाँ से जो कोलैप्स लोड का फॉर्मूला है वो आ जाएगा 8 mu by L स्क्वायर. तो यहाँ तक आपको इसका पूरे फॉर्मूले याद रखने हैं. आप पूरा प्रॉपर यहाँ से नोट करना स्टार्ट करेंगे इसे. ओके. So this is the formula for one way fixed slab. This is a one way fixed slab. Here this is negative yield line, this is negative yield line and one positive line at the center. हम mu को कोलैप्स लोड कंसीडर करते हैं. L लेंथ की स्लैब है तो ये L/2 इसका प्लास्टिक डायग्राम मैंने बनाया. तो यहाँ पर सपोर्ट्स पे Δy2 डिफ्लेक्शन है, सेंटर पे डेल्टा है, यहाँ पे Δy2 है. ओके. तो आप अगर यहाँ पे इस थीटा का फॉर्मूला लिखेंगे तो क्या लिखेंगे? डेल्टा अपॉन L/2. ये जो है ये सेंटर पे है तो ये थीटा का फॉर्मूला हो गया. ओके. वर्चुअल वर्क मेथड का मेथड होता है कि जो कोलैप्स अल्टीमेट लोड है उसकी वजह से क्या वर्क डन हुआ है. तो अल्टीमेट लोड की वजह से डिफ्लेक्शन हुआ है तो वर्क डन हमने इक्वेशन ऐसे लिख ली. और इंटरनल वर्क डन मोमेंट की वजह से हुआ, क्या हुआ? रोटेशन हुआ. तो हमने रोटेशन के टर्म्स में इक्वेशन को लिख दिया और थीटा की वैल्यू उठा के यहाँ रख दी. तो यहाँ से ये सारे फॉर्मूले आपके निकल के आ गए. तो आपको वन वे फिक्स्ड स्लैब के लिए जो अल्टीमेट लोड है उसका फॉर्मूला याद रखना है. अल्टीमेट लोड इज कैलकुलेटेड विद द हेल्प ऑफ, ये सीधे इसके न्यूमेरिकल करते हैं हम, 24 mu 24 into मोमेंट ऑफ रेजिस्टेंस बाई L स्क्वायर जो स्पैन है स्लैब का. और सिंपली सपोर्टेड के लिए क्या है? 8 mu by L स्क्वायर. ओके. सो दिस वाज द वर्चुअल वर्क मेथड. नाउ आई विल कम ऑन इक्विलिब्रियम मेथड. Okay, now we will start equilibrium work method. So before starting equilibrium work method, I just draw a figure. This one is the figure. What is this? This is a fixed ended one way slab subjected to a uniform distributed load. Fixed ended one way slab. हमने ये जो फिगर बनाया हुआ है इसका आप ये समझिए कि बीम का मिड तक का फिगर आपने इसमें ड्रॉ किया हुआ है. फिक्स्ड एंडेड वन वे स्लैब, सपोर्ट पे रिएक्शन R, यहाँ पे मोमेंट जो सपोर्ट पे हमने एज्यूम किया है दैट इज mu डैश, कोलैप्स लोड WU. ओके. L डैश L लेंथ की स्लैब है L/2. अगर इसको 20 से हम उस पर्टिकुलर स्लैब को ब्रेक करते हैं तो आपके जो मूवमेंट होगा वो इस तरीके से होगा. ठीक है. टेकिंग इक्विलिब्रियम इन वर्टिकुलर डायरेक्शन, वर्टिकल सारे फोर्सेस को हमने जीरो कर दिया. तीन इक्वेशन होती है, समीशन ऑफ V इज इक्वल टू 0, समीशन ऑफ H इज इक्वल टू 0 एंड समीशन ऑफ मोमेंट इज इक्वल टू 0.
तो समेशन ऑफ v इज इक्वल टू 0 किया आपने, तो यहाँ से रिएक्शन निकल गई आपकी r WL/2। आप ये करके देख सकते हैं, r की वैल्यू हमने यहाँ पे सारे मोमेंट को इक्वेट करके समीशन उनका 0 इक्वेट करके निकाल दिया। तो r इज द रिएक्शन। ठीक है, सिंपली सपोर्टेड के लिए। अब समीशन ऑफ m इज इक्वल टू 0 एट मिड स्पैन सेंटर लाइन एट कोलैप्स। मिड पे जो हमारा यील्ड लाइन फॉर्म हो रही है इस पर्टिकुलर केस के लिए, तो वहां पे मोमेंट, समीशन ऑफ मोमेंट को 0 करते हैं। हम क्यों कर रहे हैं? क्योंकि इक्विलिब्रियम मेथड है, इसमें हम ये मान के चल रहे हैं कि बैलेंस्ड है सारे फोर्सेस। हमने सेंटर पे मोमेंट का समीशन 0 किया, तो यहाँ से आप सेंटर पे मोमेंट 0 करेंगे क्योंकि यहाँ पे यील्ड लाइन फॉर्म हो रही है, ब्रेक हो रहा है। तो आप यहाँ पे देखिए रिएक्शन इनटू L/2 माइनस ये एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में वाला मोमेंट, तो माइनस mu डैश माइनस W इंटू L/2। तो ये W इंटू L/2 पहले तो लोड हुआ, फिर भी ये मिड पे एक्ट कर रहा होगा, सेंटर पे आप निकाल रहे हो यहाँ पे, तो L/4 माइनस mu जो सेंटर पे मोमेंट लग रहा है, इसको हमने 0 किया, r की वैल्यू इसमें पुट करती है यहाँ पे, तो यहाँ से जो W का फॉर्मूला हो गया वो सेम फॉर्मूला ये निकल के आ गया, 8 mu डैश प्लस mu by L स्क्वायर। इट इज सेम ऑप्टेंड एज द प्रिंसिपल वर्चुअल वर्क मेथड। यहाँ पे फिक्स्ड, आपने फिक्स्ड एंड वन वे स्लैब के लिए आप mu डैश इज इक्वल टू 2mu कर सकते हैं, मतलब जो आपका सपोर्ट पे मोमेंट है वो 2mu के बराबर है। मींस वो आपका दोनों जगह जो मोमेंट है वो क्या है, यूनिफॉर्मली है। तो आपने mu डैश की जगह 2mu यहाँ पे पुट कर दिया, तो W का फॉर्मूला आ गया। और अगर आप सिंपली सपोर्टेड स्लैब यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड के लिए निकालेंगे तो mu डैश की वैल्यू 0 रख देंगे, तो ये निकल के आ जाएगा। ओके, तो ये भी इक्विलिब्रियम मेथड है जिसमें हमें समीशन ऑफ v इक्वल टू 0 करना, और सेंटर पे मोमेंट को भी हम 0 कर देते हैं। सेंटर पे हम मोमेंट को क्यों 0 करते हैं? क्योंकि बीच में जो हम देख रहे हैं कि इनलाइन फॉर्म हो रही है, ठीक है। सो दीज आर द टू मेथड। तो ये जो छोटे छोटे डेरिवेशन और फॉर्मूले को ड्राइव करना है, ये पूछ लिया जाता है डायरेक्टली। यू हैव टू लर्न दिस फॉर्मूला बाय बोथ द टू मेथड्स। Okay, so as I told you about yield line formation and analysis. एनालिसिस के हमने दो मेथड यूज किए हैं, वर्चुअल वर्क मेथड है, इक्विलिब्रियम मेथड, बोथ हैविंग द सेम कॉन्सेप्ट। they both based on the this principle. In the virtual work method, the total external work done by collapse load is undergoing deflection. कोलैप्स लोड, लोड के साथ आपने डिफ्लेक्शन को लिया था, आपने देखा होगा डेरिवेशन में, आपने देखा अंडर गोइंग लोड इनटू डिफ्लेक्शन। आपको किससे इक्वेट करना है? इंटरनल वर्क डन। इंटरनल वर्क डन की वजह से क्या हो रहा है? रोटेशन हो रहा है। undergoing deflection is equated to the internal work done by the yield moment on all type of lines. This equality will same the location of yield line and then collapse load can be calculated. तो हमने जितने भी यहाँ पे फॉर्मूले निकाले हैं वो WU के निकाले हैं। What is WU? WU is the collapse load. आपको यहाँ पे जब मैं न्यूमेरिकल पे आऊंगी तो ये WU हर जगह निकालना है आपको। WU इज द कोलैप्स लोड। कोलैप्स लोड का मतलब है वो लोड स्लैब पर जिसकी वजह से वहां पे क्रैक या यील्ड लाइन आपकी फॉर्म हो रही है, या फिर क्रैक हो रहा है, क्रैक लाइन फॉर्म हो रही है। ओके, एंड इन equilibrium method, equilibrium equation of forces are written while maintaining. equilibrium equations का हमें यूज करना है। आपको पता है कि equilibrium की तीन इक्वेशन होती है, summation of m is equal to 0, summation of h is equal to 0 and summation of m is equal to 0।
तो जब मोमेंट और सारे फोर्सेस इक्विलिब्रियम में है तो हम इनको किसी भी पॉइंट पे सारे फोर्सेस का समीशन जीरो कर सकते हैं. दैट इज व्हाई वी आर यूजिंग समीशन ऑफ v इज इक्वल्स टू जीरो हियर, समीशन ऑफ m इज इक्वल्स टू जीरो हियर. ठीक है. तो दिस इज अ बीम, उसका हमने मिड तक का फिगर ड्रॉ किया हुआ, दैट इज फिक्स्ड एट बोथ, एट दैट इज वन वे स्लैब, मतलब यहाँ पे फिक्स है, यहाँ पे फिक्स है. तो ये रिएक्शन होगा, यहाँ पे मोमेंट होगा, सेंटर पे मोमेंट होगा. तो आपने यहाँ पे रिएक्शन निकाला और इस मिड पे मोमेंट को जीरो कर दिया, क्योंकि इक्विलिब्रियम वाले मेथड से हम इसको निकाल. देन यू जस्ट डू रिमेम्बर दिस फॉर्मूला. ओके, so these are very important theory questions, and in my next lecture I will take all the type of numericals and some other important formulas. Okay, so this is all about the inline theory. If you have any doubt and you just want to discuss with me, then you can send me the message and contact me anytime. Thank you.